Make sure to enter your name in chat box. Okay. Okay. So if you have any query, you can ask me right now. Any doubt? So in last class, we were discussing something about the two-dimensional array, and we were seeing, looking that, okay, see, this is a two-dimensional array, and how we can write a program using two-dimensional array that we have already seen. So if I can reopen that program, see, let's file the array IO. है So this we have seen that how we can take input and how we could print uh, this two-dimensional array. So I have given a comparison between one-dimensional and two-dimensional array. So this point I am expecting that you people should read and code, but I don't feel how many of you just did that. Because if you will read this book, you will have a doubt. Exact. I can expect few doubts from this chapter, but if you don't have any doubt, then it's a bit misleading that anyway, so we will see that. Okay. See, this we have discussed that how we could represent an array, meaning how array is represented in memory, right? So if we have it two-dimensional array or a matrix or any dimensional array, individually one-dimensional arrays are aligned sequentially. ठीक है? पहला वन डायमेंशनल array, फिर दूसरा वन डायमेंशनल array, तीसरा वन डायमेंशनल array और चौथा वन डायमेंशनल array. ऐसे ही करके अलाइन अलाइन होता है और ऐसे ही इसको ये अलाइन होने का मतलब है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में ये लोग इसको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मिलना ऐसा बोलते हैं. ठीक है. कॉन्टिग्यूअस मेमोरी का मतलब है कि इसका एड्रेस उसके बाद का जो एड्रेस होगा वो इसको मिलेगा, उसके बाद का एड्रेस इसको मिलेगा. ऐसा नहीं कि रैंडम एड्रेसेस पे ये लोग स्टोर रहेंगे, लगातार ही एड्रेस पे स्टोर रहेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, no, you should say something. There are approx 19 student in queue, but only 15 of you entered your name. So see, this is the problem you will face in attendance, I think. So please, अपना attendance mark किया करो chat box में. Hmm. Anyway, uh, now see some new thing.
What about this? Right? So that we will see today. I'm going slowly to these chapters because these are basics. And if you are good in these, data structure is nothing for us. Okay? So that's fine. So see, I should come back here. So in last class, we were saying, looking that if this is a three-dimensional array, this is first one-dimensional array, this is second one-dimensional array, and this is third one-dimensional array, right? First, second, third, fourth. So this is an array A, और इस array का dimension कितना है? Is 3/5, right? Just 3/5 one-dimensional, two-dimensional array. Now, if I used to fill elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Now, what if I have always to access this 8 and all, so that we have already seen, but for the time being, what I am doing, I am splitting this array into three different arrays. So first is this array, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 1, 1. So 1010, 1014, 1018, 1022, 1026. And another is this array 1, 2, 3, 4, and it has element 12, 1, 8, 5, and 6. And this is what? 1030, 1034, 1038, 1042, 1046. And the third array is this one. 1, 2, 3, 4. So 4, 10, 9, 14, 30. And it has an address 1050, 1054, 1058, 1062, 1066. So this is the address. And it has a name A. So what is the name of these three array? Who can tell me? Who can tell me the name of these three arrays? A1, A2. So from a two-dimensional array, I have taken I have uh, taken three different one-dimensional arrays. That I wish to tell you. Who can tell me what is the name of these three array? A0, A1, A2. Right? One person is saying A0, A1, and A2. Another one? और कोई answer? Let me A0, A10 और A11. A0, let me write. क्या बोल इसको मैं array 1 बोलता हूँ, ठीक है? हाँ, इसको मैं Yes. 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलता हूँ, ठीक है? And let me write what are the options. So one person said A0, A1, and A2. What is your answer, Tanmay? Sir, A0, A0, A10 A10, और A11. A11. Another answer, anyone? So this is Tanmay Dubey, this is Hussain Pathanwala. और कोई आंसर? हम्म, चिराग? यस सर। हाँ बोलो, क्या होगा इस तीनों एरे का नाम? सर ये समझ में नहीं आया। अरे कल का क्लास में तुम था ना? हाँ सर। तो फिर कल मैंने बताया ना।
कल तो मैंने यही पढ़ाया था, तुमने बुक जाके नहीं पढ़ा क्या घर पे? हाँ सर, ये समझ में आ गया। हाँ हाँ अब बोलो। बोल। सर, कौन से वाले का? तीनों ही एरे का नाम क्या होगा? सर ये कांस्टेंट फर्स्ट एलिमेंट में होगा तो सर A5। नहीं बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, ये एक एरे ए है, इसका नेम क्या है? ए। ठीक है, अब इस सी टू डायमेंशनल एरे से मैंने 3 वन डायमेंशनल एरे निकाल लिया। ठीक, रो वाइज, यस पहला सर। रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ये तीनों वन डायमेंशनल एरे से बना हुआ है ये। ठीक है, अब ये 3 जो एरेज है इसका नाम क्या होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर पहले वाले का तो होगा A और 5। A5, दूसरे का सर दूसरे वाले का A12 A12, तीसरे का और तीसरे का A4। A4, और कोई? अमन सर श्रीवास्तव, A0 A1 A2 ही होगा शायद, हुसैन। अभय चौधरी बोल रहा है। हाँ बोलो अभय। सर हुसैन वाला ही लग रहा है, हाँ, हुसैन A0 वाले में A1 A2। अभय चौधरी इज रिकमेंडिंग व्हाट हुसैन इज सेइंग। और कोई? दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मैं पूछ रहा हूँ अर्जुन, यस सर। क्या होगा? सर हुसैन ने जो बताया वही होगा। अर्जुन भी इसी को बोल रहा है। और दर्श जैन, सर हुसैन देखते वाला ही होगा। क्यों हुसैन वाला? अच्छा, इसमें क्या गलत है ये बताओ, तन्मय दुबे वाले में क्या सर गलत? इसमें इसमें एक एक एलिमेंट का, जैसे 1 0 है तो वो एक एलिमेंट का बता रहा है, और A0 पूरी लाइन का बता रहा है। यस, राइट, यू आर राइट, सही बात। ये जिसने लिख, चिराग तुम्हें अरे पढ़ने की जरूरत है ना। ये A5 क्या होता है? यहाँ पे जो भी होता है दैट इज एन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का क्या मतलब, अगर मैं एक सिंपल सा वन डायमेंशनल एरे ले लेता, सपोज मैं एक वन डायमेंशनल एरे लेता हूँ ए नाम का, ठीक है, इसमें 5 6 7 8 9 है। So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4th. So A of 4 का मतलब this, ऐसे वाले केस में ये इंडेक्स नंबर होता है, यानी यहाँ क्या नंबरिंग क्या है ना, ना कि तुमने यहाँ एलिमेंट का की वैल्यू समझ ली इसको, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। सो दिस पर्सपेक्टिव इज टोटली रॉन्ग। इसमें ये दो रॉन्ग, इसमें तीनों ही सही। अभी समझने वाली बात है, ये जब मैं बता रहा था तो ध्यान से सुनो। कैसे इसको कैच करेंगे, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। सी, A12 मीनिंग फर्स्ट रो, 2 कॉलम। सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है कंप्यूटर में? 0 से स्टार्ट होती है, तो 0th रो फर्स्ट रो, कॉलम नंबर 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दोनों कहाँ मैच कर रहा है? यहाँ मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला एलिमेंट, राइट। ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर कॉलम गायब कर दे हम, तो बस क्या बच जाएगा? रो बच जाएगा। सो इफ समवन इज सेइंग A of 0, मीनिंग दे आर और ही इज रिप्रेजेंटिंग ओनली रोज। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि ये ही A of 0 वन डायमेंशनल एरे में एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान देना है कि किसकी बात हो रही है। अगर टू डायमेंशनल एरे की बात हो रही है, तो टू डायमेंशनल एरे में एलिमेंट को ऐसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। इसमें से हमने रो को हटा दिया, मैं बस कॉलम को एक्सेस कर, सॉरी कॉलम को हटा दिया, मैं बस रो को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। सो इन दैट केस वी आर राइटिंग A of 0। तो A of 0 is representing column, since 0 is representing column, right? So that's why this is this the name of this array is A of 0, name of this array is A of 1, and name of this array is A of 2। और इसको बहुत
कैजुअल सेंस में अगर तुम देखो तो इस मोमेंट पे तुम्हें क्या पता है, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 1010। 1010, राइट। ठीक है, अब देखो मुझे अगर इसका एड्रेस निकालना है, इस पूरे सेकंड एरे का, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे पता है कि ए ऑफ 1 जो ए ऑफ 1 ये पहले एलिमेंट को दे रहा है ना? तो मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? ठीक, तो ध्यान से देखो, इसके लिए मुझे पता करना होगा कि ए ऑफ 1 क्या होगा। ए ऑफ 1 क्या होगा? ए ऑफ 1 क्या होता है? ए प्लस 1 का स्टार होता है कि नहीं? पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, है ना? ए प्लस 1 क्या है? 1010 प्लस 1, ठीक है, 1010 प्लस 1। अभी ये इंडिविजुअल ए जो है, ए का एलिमेंट मतलब ये पूरा रो, ये याद रखना, 2 डायमेंशनल एरे में पूरे रो को एक एलिमेंट मानता है। तो एक एलिमेंट का जंप यानी पूरे रो का जंप होने के कारण नेक्स्ट एड्रेस जो ये पुट करेगा दैट इज 1030, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट वी आर लुकिंग इनटू। अब अगर हमें ये सर्च करना है तो यू कैन चेक इट आउट इजीली दैट ए प्लस 1 का स्टार से क्या हुआ? रो में पहुंच गए। अब जब रो पे पहुंच गए, यहां से मुझे क्या करना है? एलिमेंट तक पहुंचना है, ठीक है, तो प्लस एलिमेंट नंबर 0th का स्टार, दैट मीन्स जो 1010 का 1030 का स्टार होगा, दिस इज रिजॉल्व। ये पार्ट जो है 1030 है प्लस 0 and that is star of 1030 and that we call 12, right? So this is the scenario that I wish to tell you. इसको समझना ही पड़ेगा, नहीं समझने की कोई बात ही नहीं है। Sir, your voice is cracking. हाँ हाँ बोलो, इसको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई चारा नहीं है हमारे पास। सर तो एलिमेंट तो वहीं पे फिर तो था ना, मतलब एड्रेस तो थोड़ा जोर से बोलो सुशांत। जैसे यहाँ पे ऊपर था स्टार 1030, तो यहाँ पे भी तो 12 आ सकता है ना। फिर कहाँ से? यहाँ पे? यहाँ की बात बोल रहे नीचे हो? जो लिखा ना आपने स्टार 1030, हाँ, ऊपर वाले पार्ट में। इसमें? हाँ, हाँ, यहाँ यहाँ की भी बात तो कर। मतलब 12 आ सकता है। 1030। मतलब इसकी वैल्यू वैल्यू भी तो 12 हो सकती है ना। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकती है। ये क्यों? डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट है। हाँ, तुम्हारा बात सही है कि यहाँ से सर स्टार लग गया, तो इनसाइड दिस इसके आगे इसको रिजॉल्व करेंगे तो दिस वुड गिव अस 12, है ना? हाँ नहीं हाँ। नहीं नहीं, ये डी रेफरेंसिंग इशू है। ये मैं, ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा डाउट, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, नॉट एन इशू। यहाँ देखो, एलिमेंट एक्सेस करने के लिए एक्चुअली ये वाला पार्ट तो हमें कभी मिलेगा ही नहीं। जब भी हमें मिलेगा ये मिलेगा, ये तो हम लोग समझने के लिए डील कर रहे हैं। अब इस केस में यहाँ पे अगर 12 आ जाएगा तो 12 प्लस 0 कोई एड्रेस नहीं मिलेगा, है ना? तो ये डी रेफरेंसिंग इशू मैं समझ रहा हूँ कि यू फील इन डाउट। जब हम लोग एक दो प्रोग्राम करेंगे ना, या पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब हो सकता है तुम्हारा ये क्लियर हो जाए। जब हम 2 डायमेंशनल एरे में तो कुछ चीजें हमें टेक केयर करनी होगी। जैसे कि पहले हम लोग ए ऑफ 0 किसको बोलते थे? एलिमेंट को बोलते थे। लेकिन अभी ए ऑफ 0 मेरा क्या है? इज द नेम ऑफ द वन डायमेंशनल एरे, है ना? तो चीजें शिफ्ट हो रही हैं थोड़ी सी, वैसी चीज का मीनिंग वहां पे थोड़ा डिफर था, यहाँ पे एकदम से बदल गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे यही एक एलिमेंट था और यहाँ पे पूरे एक वन डायमेंशनल एरे को एक एलिमेंट समझ रहा है, ठीक है? तो ये जब नेम है ना, तो ये कभी भी इसको वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, ये हमेशा क्या रिटर्न करके देगा? एड्रेस रिटर्न करके देगा, ठीक है? Since it is a name na, this is not a value. A of 0 is not a value. A of 1 is not a value. A of 1 is an address because this is the name of an array. समझ में आ रही है बात? और नेम ऑफ एरे क्या होता है? इज कांस्टेंट पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट।
तो ये कॉन्स्टेंटली पॉइंट करेगा अपने फर्स्ट एलिमेंट को ही। ये रूल यहाँ भी वही होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ओके। अच्छा, हम लोगों ने पहले देखा हुआ था पॉइंटर नोटेशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे, दैट int star p is a pointer and we were saying that int star p of 3 is a pointer। इस दोनों में क्या डिफरेंस था, कौन बताएगा? सर फर्स्ट वाला पॉइंटर है डिफाइन किया और सेकंड वाला सर पूरे एरे का एड्रेस स्टोर कर रहा है। पूरे एड्रेस का नहीं, ऐसा इसको बोलते हैं कि दिस इज इंटीजर पॉइंटर। इससे अभी यही समझ में आ रहा है कि ये किसी ना किसी एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। P is पॉइंटिंग, जिसका भी एड्रेस P रखा हुआ है वो एड्रेस क्या है, किसी न किसी एक इंटीजर का एड्रेस है। ठीक है, कोई इंटीजर का एड्रेस है। दैट इज व्हाट दिस सिग्निफाइज। ये बता रहा है कि P जिसका एड्रेस रख रहा है ना, P जिसका एड्रेस रख रहा है, इसको P2 बोलते हैं, इसको P1 बोलते हैं, तो थोड़ा आसान है। तो P2 जिसका एड्रेस रख रहा है वो क्या है, वो एक 3 एलिमेंट वाला एरे है। ठीक है, ये कोई एक एरे है और जिसमें कि इंटीजर्स भरे पड़े। ठीक है, तो किसी 3 एलिमेंट वाले इंटीजर एरे को पॉइंट करना, यही डिफरेंस है इस दोनों में। समझ में आ रही है बात? जिसको भी नहीं क्लियर था उसका क्लियर हुआ? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। हाँ यस रिपीट सर। कर दो। हाँ देखो, तो देख मैं इसको इरेज करता हूँ। थोड़ा ध्यान दो बेटा, ऐसे इरेज एक बार में कैसे काम चलेगा? बुक तुम लोग पढ़ते नहीं हो। ये प्रॉब्लम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ सी प्रोग्रामिंग में ही, सेम पॉइंटर डिक्लेरेशन। अगर कभी भी हम लोग लिखते हैं int स्टार p1 और हम लिखते हैं int स्टार p2 ब्रैकेट एंड 3, राइट? इसको देख के ये पता चल रहा है क्या कि p1 कोई पॉइंटर होगा, पहली बात, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, किसी न किसी इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। यानी कोई एक इंटीजर होगा, सपोज x, जिसका अपना कोई एड्रेस है, इसमें कुछ वैल्यू है और इस एड्रेस को ये रखा हुआ है। यानी P1 किसका एड्रेस रखा है, P1 पॉइंटर है तो क्या रखेगा, एड्रेस रखेगा। तो P1 किसी न किसी इंटीजर का एड्रेस रखा हुआ है, यहाँ से यही पता चल रहा है। ठीक है, अब P2 क्या है? P2 P कोई एक पॉइंटर ही है क्योंकि स्टार P लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी कोई पॉइंटर है। अब ये किसी इंटीजर का ही एड्रेस रखा है, लेकिन वो इंटीजर कैसा है, वो इंटीजर एरे है। ठीक है, तो इसके पास जो भी एड्रेस है 4010, वो एड्रेस किसका है, वो एड्रेस किसी न किसी 3 एलिमेंट वाले एक एरे x का है। ठीक है, राइट आगे सर। यस सर। ना? ये चीजें, ये डिफरेंस है इस दोनों में, इस चीज को समझ के रखना। तो ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए 3 डायमेंशनल एरे को पॉइंटर से यूज करने के लिए, है ना? क्योंकि हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे में बहुत आसान था कि 1 डायमेंशनल एरे के लिए अपने पास इतने ही एलिमेंट्स होते थे, 1 2 3 4। ठीक है, कोई भी 1 डायमेंशनल एरे होता था। तो ये हम यहाँ पे लिखते थे int स्टार p एंड p इक्वल टू a, यानी a का एड्रेस p में चला जाता था और फिर p सिंस एक एलिमेंट का एड्रेस रखता था। यहाँ पे थोड़ा मैं डिटेल लिखता हूँ। सो p 1010 1014 1018 1020
2 2 5 6 7 8। अब ये डिक्लेयर कर दिया। अभी इसका मतलब क्या, ए में क्या रखा हुआ है, क्या रखा है ए में? ए में क्या रखा है? 1 0 1 0। 1 0 10 1 0। क्यों इतना टाइम लगता है? A is array name is constant pointer to its first element, यानी पहले एलिमेंट का एड्रेस रखेगा। अब पहला एलिमेंट एक सिंगल इंटीजर हो या फिर एक पूरा का पूरा वन डायमेंशनल एरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये रख गया ए में। अब ए की वैल्यू पी में जा रही है, तो पहले तो इस लाइन में पी डिक्लेयर हुआ, तो पी डिक्लेयर हुआ तो पी कुछ ऐसा होगा, है ना? पी का अपना कोई एड्रेस होगा, और पी क्या कंटेन कर रहा है? जो ए कंटेन कर रहा है वही पी कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब पी को अगर हम पढ़ाते हैं, यानी पी अगर हम अभी पी को प्रिंट करते हैं इन एनी केस, अगर हम क्या करते हैं, अब बी से हम इन सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं ना? इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? स्टार ऑफ पी। स्टार ऑफ पी लिखने से क्या होगा? स्टार ऑफ 1 0 1 0 होगा। स्टार ऑफ 1 0 1 0 का मतलब 1 0 1 0 के इनसाइड में क्या है? तो इनसाइड 5 है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस एड्रेस को एक बढ़ा सकते हैं, तो पी को एक p+1 कर देंगे, तो ये क्या चेंज हो जाएगा? एक्चुअली होगा क्या, 1 0 1 0 +1। तो इसमें +1 करने का मतलब एक इंटीजर जंप, मतलब ये जिस टाइप का है उतना का जंप। तो p इंटीजर टाइप का है तो उतना का जंप, यानी 1 0 1 0 +1 इज 1 0 1 4। ठीक, तो p की वैल्यू हो गई 1 0 1 4, राइट? अभी अगर हम स्टार p करते हैं, दैट इज स्टार ऑफ 1 0 1 4, दैट इज इनसाइड 1 0 1 4, दैट इज 6। फिर हम करते हैं p इक्वल टू p+1, तो ये क्या देगा? 1 0 1 4 +1 मीनिंग 1 0 1 8। तो ये फिर से चेंज हो जाएगा 1 0 1 8, and then if we say star of p, then star of 1 0 1 8, that is 7। तो ये वे होता है मेरे वन डायमेंशनल एरे में पॉइंटर के लिए, राइट? लेकिन जब हम टू डायमेंशनल एरे में जाएंगे तो हमने क्या देखा होगा कि टू डायमेंशनल एरे का एक एलिमेंट इज एन एरे। तो व्हाई नॉट ये जो पूरा एरे है इसको हम लोग किस चीज से दिखा दें? एरे ऑफ पॉइंटर्स दिखा। तो अगर अपने पास एरे है ऐसा इन ए ऑफ 3 क्रॉस 5, यही था ना? 3 क्रॉस 5 एरे था, राइट? तो इसके लिए अगर हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो क्या है हमारे पास? 5 एलिमेंट वाला चाहिए, ऐसा ना? 5 एलिमेंट वाला वन डायमेंशनल एरे चाहिए। तो वी विल से इन स्टार पी ऑफ 5। अब ये क्या होगा, करेगा, अगर हमारे पास एक टू डायमेंशनल एरे है, सपोज दिस, राइट? 1 2 4, ठीक? And this it has a name A, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 50, ठीक? तो इसमें इस ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि P is pointing to an integer array of size 5, यानी 5 साइज का इंटीजर एरे को पॉइंट कर रहा है। और 5 साइज का इंटीजर एरे इफ यू कैन विजुअलाइज, ये तो हमारे पास यहीं पे रखा हुआ है ना? दिस इज फर्स्ट 5 साइज का एक इंटीजर एरे है ना? तो अगर अभी हम बोलेंगे अगर दिस इज यहाँ पे हम अगर बोलते हैं p इक्वल टू a, है ना? तो हमारा अगर p अभी बोला ना, तो p का मतलब क्या? पॉइंटिंग टू दिस। और अगर p+1 किया ना मैंने, तो पॉइंटिंग टू दिस। p+2 किया तो पॉइंटिंग टू दिस। यानी ये स्टार ऑफ p इज नथिंग बट स्टार ऑफ मतलब p+0। तो ये पहले वन डायमेंशनल एरे को पॉइंट करना, फिर दूसरे वन डायमेंशनल एरे को पॉइंट करना, फिर
तीसरे वन डायमेंशनल एरे को ऑपरेट करना, राइट। तो ये हमारा p प्लस 0 है, ये p प्लस 1 है, ये p प्लस 2। यही सेम चीज ए के केस में भी है, ये भी इसको हम लोग a प्लस 0 बोलते हैं, ये a प्लस 1 है और ये a प्लस 2 है। लेकिन a का नाम यूज इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि a की कंटेंट को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज द कांस्टेंट पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट, है ना। और ये कन्वेंशनल भी नहीं है क्योंकि इसके पास ओरिजिनल एड्रेसेस रखे हुए हैं, राइट। इसलिए हम इसको चेंज नहीं करते, इसलिए हम इसके बदले पॉइंटर यूज करते हैं। और इसका जो भी पॉइंटर यूज करने का मोटिवेशन है, that we have already discussed many times. So if you have any issue, you can go back and search there. ठीक है, अभी हम लोग वापस आते हैं पे और देखते हैं कि कोडिंग पार्ट में क्या क्या है, राइट। अच्छा, इसको कौन सॉल्व करके बताएगा? ये तो बहुत सिंपल है ना। Let me minimize it ताकि मैं इसको यहाँ लिख सकूं। टाइम ये है 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 3 1 4 3 4 0 1 3 1 2 7 8। ये मेरा क्या है? एक 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। अब ये बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका नाम है s, ठीक है। The name of this array is s. Now tell me what is the value of this? कौन बताएगा? एटी आएगा। बस बोलो श्रेयस। Your voice is breaking. Okay. 80. Shreyas is saying 80. Someone is saying 80. अच्छा सॉरी, प्रखर is saying 80. चलो देखते हैं, है ना। और कोई आंसर किसी के पास? और कोई? हुसैन जोर से बोलो, नहीं आवाज आ रहा। 80। ओके, और दूसरे का आंसर? ईशान श्रीवास्तव। ईशान श्रीवास्तव, यस सर। आप बोलो क्या होगा आंसर दूसरे वाले का? यस इसका सर। इसका क्या होगा? इस स्टेटमेंट का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। अच्छा तुम बताओ, एरे क्या होता है? ईशान, ईशान बोलो तुम। यस सर। एरे क्या होता है? हाँ, एरे क्या होता है? व्हाट इज एन एरे? हम्म, ईशान, आवाज आवाज नहीं आ रही मेरी। ओके, तो आपको अपॉलॉजी देनी पड़ेगी ऐसे इसमें। आपके घर से आज बात करता हूँ। दीपिका, दीपिका सिसोदिया। दीपिका सिसोदिया, यस सर। क्या होता है बेटा? एरे क्या होता है? Sir, array stores elements of multiple type. और मल्टीपल टाइप, बहुत अच्छे, बढ़िया। तुम कुछ नहीं पढ़ रही हो,
Sir, sorry, sir. Of similar type. सिमिलर टाइप से क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ, 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है? अभी जो आज मैंने बताया वो समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो ये sir, सब बताइए, आ गया. ये सेकंड वाला का क्या होगा वैल्यू? सर स्टार अभी ऑफ जो आपने पूछा. S2+1, हाँ ये सामने स्क्रीन पे है। Yes, sir. हम्म Yes, sir. S2 सर मैं वही, सर मुझे भी 80 लग रहा है लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं. बेटा मैं पहले वाले के आंसर 80 हो सकता है, दूसरे वाले का पूछ रहा हूँ। दूसरे वाले का क्या होगा? 80 होगा या कुछ और होगा? सर एक सेकंड. हाँ तन्मय, सर यस 33. सर. हाँ थर्ड बोलो, दीपिका बोलो बोलो। सर 33 मतलब S21 का. सेकंड वाला, लेट मी मार्क यस प्रॉब्लम नंबर। ये प्रॉब्लम नंबर 1, ये 2, ये 3। 2 का बोल रही हो या किसका बोल रही हो? फर्स्ट का? सर आपने जो पूछा था. ये कौन सा? ये 2 वाला? सर आपने मेरे से कौन सा पूछा? S2+1. हाँ ये 2 वाला पूछा मैंने तुमसे। इसका यस बताओ। सर 33. 33। और कोई आंसर? इसको 80 बोला गया, इसको 33 बोला गया। और कोई आंसर? मितुल, यस सर. कोई आंसर इसका? सर सेकंड वाला, थर्ड वाला. सेकंड वाला सर इसका आंसर 80 होना चाहिए. 80 होना चाहिए। ठीक यस है। सर. और कोई? समा कटारिया, थर्ड वाले का आंसर 78। थर्ड का 78। ठीक है। दर्श जैन, ये नहीं सर, दीपिका ने रोहित। दिया। समा, रोहित। यस सर. बताओ बेटा, ये सेकंड वाले का क्या होगा आंसर? सर 80 लग रहा है. 80 लग रहा है का क्या मतलब? और थर्ड वाले का? नहीं मतलब 80 होना चाहिए. थर्ड है मैम. ना? एक सेकंड. सर सब सेम तो है, सबके आंसर 80 तो सबका है. ही 80 सर होगा. सर सबका सही 80 80 होगा. होगा, है ना? बिकॉज ये तो यस सर. रिप्रेजेंटेशन इशू है। 3 अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है ना? कभी भी ब्रैकेट में कुछ भी लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? दिस प्लस दिस स्टार, ये दिस इज इक्वल टू S+2 स्टार। खत्म। तो ये इतना स्टेटमेंट लिखो और ये स्टेटमेंट लिखो, बात बराबर है। अब इसका S(2) का 1, तो इसके बदले तो हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम लोग स्टार S+2। अब ये जो पूरा है, दिस +1 स्टार, दैट इज व्हाट दिस इज, है ना? और इसी को सिंपल फॉर्म में यहाँ छोड़ दिया है, इसको एक्सपेंड कर लिया है। तो ये कोई रिप्रेजेंटेशनल इशू है, कोई मैटर ही नहीं है इधर तो अपने पास, है ना? तो सबका आंसर सेम होगा, कोई भी डिफर नहीं करेगा। 10 ध्यान दो, योर आंसर इज रॉन्ग। दीपिका ध्यान दीजिए, आपका भी आंसर गलत है। राइट, जिसने भी 80 बताया दैट इज परफेक्ट।